Hi friends, I'm Anand Panchbhai at Engineers Classes, and today we're going to start with the next topic, which is continuous charge distributions. Friends, when we talk about charge, electron, proton or whatever, we've always talked about one charge, two charges, three charges, but that is what we talk about a quantum level of it. Fine. When we talk about one charge, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, practically we never work with that charge. We always work with the charges having continuous distribution. फाइन. जैसे कि एग्जाम्पल ले, हम लोग जब विंटर्स में मस्त कोम वगैरह सेट करते हैं, हेयर को सेट करते हैं कोम को लेके, तो ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन है, बल्क में चार्ज आता है. पता चला कि सो वी ऑलवेज वर्क विद समथिंग वेयर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? Fine. So we never have one electron, two electron, three electrons. We always have charges in bulk. Fine. So there are certain distributions that we have. It is called as charge distributions. They are called as line charge distribution, surface charge distribution, and volume charge distribution. Now what is a line charge distribution? It is charge per unit length. It is called as charge per unit length. वहाँ पे marker थी कोई? It is called as charge per unit length. It is called as charge per unit length. क्या बोलते हैं उसको? Charge per unit length. Similarly, this is called as charge per unit surface. Charge per unit surface. This is charge per unit volume. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? Fine. So we understood this part. फाइन. ओके. मतलब अगर मेरे पास 10 मीटर लंबा एक लाइन है, फाइन, 10 मीटर लंबा एक कंडक्टर है, उस पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मैं बोलता हूं इट इज 1 कूलम्ब पर मीटर, यानी 1 मीटर पे कितना चार्ज हुआ? 1 कूलम्ब का. पता चला कि नहीं पता चला? 1 मीटर पे कितना चार्ज हुआ? 1 कूलम्ब का. तो अगर टोटल मेरा 10 मीटर लंबा वायर है तो कितना चार्ज होगा उस पे? 10 कूलम्ब का चार्ज होगा बगासा खा के. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का पता चला ये चीज? फाइन. सो वी अंडरस्टूड इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी. क्या? लाइन चार्ज डेंसिटी. इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी, देन if we have the value of line charge density, then we can call it as lambda. Line charge density is lambda. It is charge upon length, and we generally denote it as lambda, which is equal to dq divided by dl. पता चला कि नहीं पता चला? It is dq divided by dl. So I can say that dq is equal to what? Lambda multiplied by dl. So if you want to find out total charge, so you can say that q, which is equal to integration of dq, which is equal to total integration of the line that we have of this line charge distribution, total length lambda into dl. पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? फाइन. ओके. Based on this, we can also calculate the value of force. We can also calculate the value of electric field intensity. Fine. Okay. Chalo. Similarly, if I want to talk about charge per unit surface, so I can say, see, this is a very small amount of length, this is a very small amount of area, this is a very small amount of volume. ठीक है? Fine. Okay. So we can say that आखे पे Q charge. तो छोटे से पे कितना? छोटू चार्ज. पता चला? छोटे से पे कितना? छोटू चार्ज. आखे पे कितना? Q चार्ज. छोटे से पे कितना? छोटू चार्ज. अगेन आखे पे कितना? Q चार्ज. छोटू से पे कितना? छोटू चार्ज. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज dq. दैट्स व्हाट वी कॉल एज dq. पता चला कि नहीं पता चला? dq क्या है? आखे का जो चार्ज होता है वो टोटल q. फाइन. छोटू से एलिमेंट पे होता है छोटू q. पता चला? आखी की वजह से आएगा अक्खा फोर्स, आखी की वजह से आएगा अक्खा इंटेंसिटी, छोटू कैसे वजह? छोटू इंटेंसिटी, छोटू फोर्स. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? व्हेन आई से छोटू इट इज डिफरेंशिएशन. व्हेन आई से छोटू इट इज डिफरेंशिएशन. पता चल रहा है ये चीज? पता चल रहा है ये चीज? क्लियर सबको? फाइन. मनीषा क्लियर हो रहा है? ओके. सो वी अंडरस्टूड that sigma, this is what we call as sigma, which is equal to dq divided by ds. Fine. So I can say that dq, which is equal to what? Sigma into ds. पता चला? So q, which is equal to what? Integration sigma into ds. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? Clear? Fine. Then after third, if we say
volume charge distribution, so it is denoted by rho. So rho is equal to dq divided by dv. Fine, dq divided by dv, we can say that lambda is equal to charge per length. So I can say that sigma is also equal to charge per area. Charge, total charge upon total area. It will give me total charge पता है, total area पता है. So बगा सा करके we can understand this is our sigma. Fine. तो यहाँ पे भी क्या हो गया, dq which is equal to rho into dv. So q which is equal to integration rho into dv. Now there is a difference. यहाँ पे सर आपने L लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं. This is surface, this is volume. सर कोई फर्क है इसमें? डेफिनेटली फर्क है. व्हेन आई टॉक अबाउट लाइन इंटीग्रेशन, या तो x चेंज हो रहा है, या तो y चेंज हो रहा है, या तो z चेंज हो रहा है, या तो और ईदर x is changing or y is changing or z is changing. So only one dimension is changing over here. But when I say ds, either x and y are changing or y and z are changing or z and x are changing. पता चला कि नहीं पता चला? Any two of the coordinates are changing. So this integration is not only one integration, it is double integration. It is double integration. पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? Fine. Okay. Area सिर्फ dx लिखूंगा तो area बना वो? नहीं. dx into dy. So that made an area. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? dx into dy. So that makes an area. पता चल रहा है? फाइन. सो वी हैव गॉट dx into dy, so we've got the value of area. यहां पे रखा है dx और dy, दो वेरिएबल है मेरे पास. सो इंटीग्रेशन भी कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए. फाइन, तभी जाके d और इंटीग्रेशन कैंसिल होगा ना. पता चला कि नहीं पता चला? अलग क्लियर हो रहा है? फाइन. अच्छा, वॉल्यूम में कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन, तभी जाके वॉल्यूम बनता है. तो उसमें क्या होगा? dx, dy और dz तीनों होगा. तो यहां पे इंटीग्रेशन कैसा होता है? ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है. सर we have to study all these integrations? No, we'll be limiting our study to this only. Fine. थोड़ा सा इसका आएगा, but it's very simple. It would be very simple. बराबर. Fine. Higher studies में जब जाओगे तब ये पूरा आएगा. Fine. Okay. Differential calculus आएगा, integral calculus, I mean बहुत सारी चीजें आएगी. Fine. Multiple integrals आएगा. Fine. ठीक है, उसमें एक साथ बहुत सारे इंटीग्रेशन करने होते हैं हमें. Clear? तो इसमें कोई डाउट? Fine. Similarly यहाँ पे रो को हम लोग क्या बोल सकते हैं? It is charge, total charge upon total volume. पता चला कि नहीं पता चला? Clear? Fine. If I want to find out the value of force, so I can say that force, देख अभी लाइन चार्ज की वजह से वैल्यू ऑफ फोर्स अपन कैलकुलेट करते हैं. देख, सो वी कैन से दैट आखी लाइन की वजह से अक्खा फोर्स, छोटू सी लाइन की वजह से छोटू सा फोर्स, राइट? छोटू सी लाइन की वजह से छोटू सा फोर्स. सो वी कैन से दैट छोटू सा फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर ले ले, छोटू सा फोर्स इज इक्वल टू, फाइन, इसकी वजह से इसके ऊपर. फाइन. ओके, तो ये वेक्टर वाला फंडा तो क्लियर है. पर फोर्स का इक्वेशन क्या है? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. बराबर. फाइन. तो अगर फोर्स के बारे में बात करता हूं, तो फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. बराबर. फाइन. तो अभी मेरा एक चार्ज तो फिक्स है, q0 तो फिक्स है, q2 इज इक्वल टू q0, q2 फिक्स है, q0. बराबर. पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. नहीं पता चल रहा है? पक्का? किसी को डाउट? ओके. अगर Q2 मेरा Q0 फिक्स है, फाइन. अभी Q1 क्या? तो छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज है. यहाँ पे चार्ज कितना है? तो इसका लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा. फाइन. यानी लैम्डा इज व्हाट? चार्ज अपॉन लेंथ. तो इसके साथ मैंने छोटा सा लेंथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे को छोटा सा चार्ज मिल गया कि नहीं मिल गया? फाइन. सो वी कैन से दैट df बार इज इक्वल टू k छोटा सा चार्ज इंटू Q0 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r स्क्वायर इंटू r कैरेट. r कैरेट कहां है? इस डायरेक्शन में है. r कैरेट इज इन दिस डायरेक्शन. पता चला कि नहीं पता चला? r कैरेट इज इन दिस डायरेक्शन. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन. सो आई कैन से दैट ये छोटू क्यों आया? पता चला? छोटू चार्ज की वजह से छोटू फोर्स. अच्छा, चार्ज कितना है? सो df बार विच इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा इंटू dl इंटू Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैरेट. तो फोर्स कितना हो गया? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ df बार विच इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ k, बाहर निकल गया, लैम्डा भी वैसे निकल जाएगा तो अंदर ही रखते हैं, k लैम्डा dl Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैरेट. कुछ नहीं निकालते. चलो, तो हमें पता चला कि नहीं पता चला? किस तरह से फॉर्मूला आएगा उसका? फाइन. बेटा पता चला?
Fine, we just have found out small amount of force and then we have integrated. Fine, integration में limits क्या आएगी, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, जो भी लेंथ हो, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, बगा सका कि क्लियर. फाइन, 0 to L भी ले सकते हैं. फाइन, अच्छा ऐसा बोला है वायर के यहां से यहां तक, तो वो भी लिमिट ले सकते हैं. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. फाइन, कुछ भी हो सकता है ना उसके अंदर. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग इट ओवर हियर. डन. कोई डाउट, कोई भी डाउट, पक्का डन. लिखो.